بلیٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر سے۔ عمران خان نے غیر ملکی انٹرویو میں غیر ملکی سازش کی خود ہی تردید کر دی۔ یہ کہنا تھا وزیر اعظم شہباز شریف کا، جنہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ عمران نیازی نے ذاتی سیاست کے لیے ملک کے سفارتی تعلقات کو نقصان پہنچایا۔ پاکستان کو نقصان پہنچانے والے اس مکار کو قوم پہچان چکی ہے۔ جھوٹا بیانیہ بنانے پر عمران خان کو سزا ملنی چاہیے۔ سازشی بیانیہ بنا کر ملک کو نقصان پہنچایا، اب قیمت ادا کرنا ہوگی۔ اسے ایسے نہیں چھوڑیں گے، وقت آ گیا ہے اس کے گریبان پر ہاتھ ڈالا جائے۔ عمران نیازی کی سیاست امپائر کی مرہون منت تھی، اب بھی انگلی کی تلاش میں ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کے سر پر آ کر ہاتھ رکھے، مگر اب ایسا نہیں ہوگا۔ وزیر دفاع قومی اسمبلی میں خوب گرجے برسے۔ اگر تم مرضی کی FIR نہیں کٹ پا سکتے تو حکومت چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ خواجہ آصف نے کپتان کے سیاسی زخموں پر نمک چھڑک دیا۔ کہتے ہیں آرمی چیف کی تقرری پر نواز شریف سے مشاورت ہوئی، نہ ہی ابھی کوئی فیصلہ ہوا ہے۔ ان کی ساری سیاسی زندگی عمران خان کی جو ہے وہ یو ٹرن سے بھرپور ہے۔ اب وقت آیا ہے کہ تمہارے اس جھوٹ کی وجہ سے تمہارے گریبان کے اوپر ہاتھ پڑنا چاہیے، اس قوم کا بھی، اور جو عزت اور وقار جس کے ساتھ تم کھیلے اس ہاؤس کے، اس کا بھی تم اس کی بھی قیمت ادا کرو۔ اس ملک اس قوم کی قسمت کے ساتھ جس طرح کھیلا گیا، جہاں پہ ناچنا اور گانا جو ہے وہ 126 دن جو ہے جاری رہا، اور امپائر کی انگلی اٹھنے کی انتظار کرتا رہا۔ اس کی سیاست کل بھی اس طرح تھی، آج بھی اس طرح ہے، آئندہ بھی یہی رہے گی کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے سر پہ کوئی ملک سے باہر بھی ہاتھ رکھے اور ملک کے اندر سے بھی اس کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھے۔ اپنی حکومت ہے، پرویز الہی کی حکومت ہے، اس میں FIR اس کی درج نہیں ہوتی، اس کی مرضی کے مطابق۔ اس کا گلہ بھی جو ہے وہ اس کولیشن حکومت کے ساتھ ہے۔ آپ کی کرسی پہ ایک شخص کو بٹھا کے اس سے اس ہاؤس کو ڈیزالو کروا دیا، اس اسمبلی کو ڈیزالو کروا دیا۔ وہ تو عدلیہ جو ہے کیم ٹو آر ریسکیو، انہوں نے آئین کو بچایا، نہیں تو آئین تو اس دن پامال ہو چکا تھا۔ یہ سارا کچھ کر کے اور بڑا کمفرٹیبلی وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹس بیہائنڈ می اینڈ اٹس آل اوور۔ امریکہ کے ساتھ جو ہے ہم لوی ڈوی ہو گئے۔ میرا خیال ہے کہ اس ہاؤس کو اس بات کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ایک شخص جو ہے گلیوں اور بازاروں کے میں ایسے الزام لگاتا رہا ہے 7-8 مہینے، اور کل اس نے الزامات لپیٹ لیے ہیں، اس کو اس کی قیمت ادا کرنی چاہیے۔ عمران خان کا یو ٹرن پر پھر یو ٹرن۔ امریکی سازش سے متعلق بیان پر کپتان یو ٹرن کے بعد بھی کنفیوزڈ۔ برطانوی نشریاتی ادارے کو دیے گئے انٹرویو پر پھر بیان بدلنے کی کوشش۔ کہتے ہیں ان کے بیان کو نون لیگ والے توڑ مڑوڑ کر پیش کرتے ہیں۔ کپتان نے پنجاب حکومت اپنی ہونے کے باوجود بے اختیار ہونے کا اظہار کر دیا۔ PTI سربراہ کہتے ہیں کہ پنجاب پولیس ان کا حکم نہیں مان رہی، باہر بیٹھا شخص ملک کے فیصلے کر رہا ہے۔ الیکشن کب ہوں گے، اہم ترین عہدے پر کسے لگانا ہے، یہ فیصلے باہر بیٹھے شخص کو کرنے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ وفاقی وزراء کے عمران خان پر تابڑ توڑ سیاسی وار۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں عمران خان امریکی سازش کے بیانیے سے مکر گئے۔ سازشی بیانیہ پس پش ڈالنے سے بات ختم نہیں ہوگی۔ عمران خان نے سازش کے نام پر انتشار اور جھوٹ پھیلایا۔ نام نہاد حقیقی آزادی کا اصل چہرہ مکمل بے نقاب ہو چکا۔ وفاقی وزیر شہری رحمان کہتے ہیں کہ آڈیو لیک میں ظاہر ہو چکا سائفر پر من گھڑت اور جھوٹا بیانیہ بنایا گیا۔ کی سازش کا بیانیہ پس پش ڈالنے سے بات ختم نہیں ہوگی۔ عمران خان کو جواب دینا پڑے گا۔ جس بیانیے پر پورے ملک میں انتشار اور جھوٹ پھیلایا، جواب دیے بغیر جان نہیں چھوٹے گی۔ نام نہاد حقیقی آزادی کا اصل چہرہ مکمل طور پر بے نقاب ہو گیا۔ چیئرمین PTI نے اقتدار کی خاطر پاکستان کے خارجہ تعلقات کو سنگین نقصان پہنچایا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف سے عمران خان کے بیان سے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا یہ شخص بہت جلد باقی الزامات پر بھی یو ٹرن لے گا۔ ہر چیز سے مکر جاتا ہے۔ اس نے پچھلے 4 سال میں کتنی باتیں کی ہیں، کسی بات کے اوپر وہ کھڑا رہا ہے۔ اس کا نہ صبح کچھ ہوتا ہے، شام کو کچھ ہوتا ہے، کس حالت میں ہوتا ہے، کس حالت میں کیا کہہ جاتا ہے،
उसको खुद नहीं याद रहता। वफाकी वजीर शीरी रहमान ने भी कप्तान को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। कहती हैं साजिश का ढोंग रचाकर पाकिस्तान को सफारती नुकसान पहुंचाया। इमरान खान के झूठे बयानिए से मुल्क को जो सफारती नुकसान हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है? ऑडियो लीक में जाहिर हो चुका साइफर के मामले पर मनगढ़ंत और झूठा बयानिया बनाया गया। मनगढ़ंत साजिश तैयार करके अब कह रहे हैं ये माजी का मामला है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है आर्मी चीफ की तौसीह से मुताल्लिक़ कानून ख़त्म हो जाना चाहिए। सीनियर तरीन शख्स की बतौर आर्मी चीफ तकर्री होनी चाहिए। वज़ीर आज़म चंद दिनों में नए सिपा सालार का फैसला करेंगे। इमरान खान के ज़ख्म ख़तरनाक होते तो शौकत खानम हॉस्पिटल ना जाते। मार्च पर हमले में मुलविस शख्स को उन्होंने खुद पकड़ा। क्या हमले की FIR दर्ज करना सुप्रीम कोर्ट का काम है? राना सनाउल्लाह का तंजिया सवाल। बुलेटिन में वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। PTI का लॉन्ग मार्च मकामी रहनुमाओं और ताजरों के लिए दर्द सर बन गया। लॉन्ग मार्च में बंदों को लाने के लिए पैसे बांटने की वीडियो सामने आ गई। बंदे ज्यादा जाहिर करने के लिए मंडी बहाउद्दीन में बाजार बंद कर दिया गया। पंजाब पुलिस PTI के बैनर्स लगाती रही। लॉन्ग मार्च का अहवाल IS रिपोर्ट में जानते हैं। PTI का मंडी बहाउद्दीन में पावर शो, अवाम का लॉन्ग मार्च में अदम दिलचस्पी का इजहार। रहनुमा कंटेनर से कारकुनों को बुलाते रहे। शर्मिंदगी से बचने के लिए PTI रहनुमा मकामी खवातीन में पैसे बांटते रहे। 2000 रुपए लो और लॉन्ग मार्च में आओ। पुलिस एहलकार भी पैसे लेने के लिए लाइन में लग गया। लॉन्ग मार्च शुरू होने से पहले मंडी बहाउद्दीन का बाजार बंद कर दिया गया। ताजरों का कहना था लॉन्ग मार्च उनके लिए दर्द सर बन गया। पुलिस और PTI कारकुनों ने जबरदस्ती दुकानें बंद कर दी। लॉन्ग मार्च की वजह से उनका कारोबार बुरी तरह मुतासर हो रहा है। किस चीज से हमें आजाद करवाना है इन्होंने? ये बाजार सारे बंद कराए हुए हैं, हमारे कारोबार मुतासर हुए हैं। अगर मजदूरी नहीं करेंगे तो घर बच्चों का खाना कैसे लेके जाएंगे? बाजार तकरीबन टोटल सारे बंद ने, कारोबार अगे कोई नहीं है। उस तो बाद दुकाना टोटल सारी ही बंद है। पंजाब पुलिस के एहलकार सिक्योरिटी देने के साथ PTI के बैनर्स और तशहीरी पोस्टर्स लगाते रहे। कप्तान के खिलाड़ी पुलिस एहलकारों को हिदायत देते रहे। नियो न्यूज की टीम ने तमाम मनाजिर कैमरे की आंख में महफूज कर लिए। लाहौर में इमरान खान की रिहाइश का जमान पार्क नो गो एरिया बन गया। लाहौर पुलिस ने सिक्योरिटी के नाम पर हद कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के घर के बाहर सिक्योरिटी के गैर मामूली इक़दाम। इमरान खान के घर के बाहर 584 अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए तैनात किए गए हैं। तफसीलात शाहिद रिजवी की रिपोर्ट में। इसने सिक्योरिटी के नाम पर खुशामद की हद कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के घर के बाहर सिक्योरिटी के गैर मामूली इक़दाम। जमान पार्क के बाहर 584 अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए तैनात। जराये के मुताबिक जमान पार्क में 4 SPs, 6 DSPs, 16 SHOs, 42 अपर सबॉर्डिनेट्स जबकि 516 कांस्टेबल तैनात किए गए हैं। पुलिस राय के मुताबिक इमरान खान को फराहम किया जाने वाला खाना भी रेस्क्यू टीमों से चेकिंग के बाद फराहम किया जा रहा है, जबकि क्विक रिस्पांस की 18 टीमें 3 शिफ्टों में काम कर रही है। 6 मुख्तलिफ सड़कों पर गाड़ियों की स्पीड कंट्रोल करने के लिए जिग-जैग बैरियर रखे गए। ऑब्जर्वेशन के लिए 60 छोटी पोस्टें और पिकेट्स बढ़ा दी गई। घर की गिरदोनवा में 10 फुट ऊंची मूवेबल बम प्रूफ दीवारें बनाई गई हैं, जबकि नहर की तरफ से आने वाली शाहराह को सील कर दिया गया है। लाहौर पुलिस ने सिक्योरिटी के हवाले से जिला पंजाब को ब्रीफिंग भी दी है। शाहिद नियो न्यूज लाहौर। वजीराबाद में इमरान खान पर कातिलाना हमले में जाबहक PTI कारकुन मुअज़्ज़म गौंदल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। हॉस्पिटल ज़राए के मुताबिक मुअज़्ज़म गौंदल को लगने वाली गोली बड़ी गन की लगती है। खदशा है मुअज़्ज़म को लगने वाली गोली मुलजिम नवीद की पिस्तौल की नहीं है। हॉस्पिटल इंतजामिया ने कैमरे के सामने मौक़िफ़ देने से गुरेज किया है। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अहले खाना के हवाले कर दी गई। मरहूम के करीबी अजीज़ ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट वसूल की। रिपोर्ट के मुताबिक अरशद शरीफ की लाश पर 12 ज़ख्म पाए गए हैं। ज़राए का पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से कहना है कि अरशद शरीफ की बाईं आंख के गिर्द स्याह निशान था। गर्दन के बाईं जानिब ज़ख्म मौजूद था। कमर के बालाई हिस्से पर ज़ख्म का निशान पाया गया। कमर पर मौजूद ज़ख्म के गिर्द स्याह निशान मौजूद था। दाएं हाथ के 4 नाखून मौजूद नहीं थे। दाईं गलाई पर रगड़ का निशान था। अरशद शरीफ की खोपड़ी की बाईं जानिब की हड्डी गायब थी।
दिमाग बाईं जानिब से मुतासिर हुआ था। मरहूम अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनके अहल खाना को दे दी गई है और इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए का कहना है कि अरशद शरीफ की बाईं आंख के गिर्द स्याह निशान था, गर्दन की बाईं जानिब जख्म मौजूद था। वेलकम बैक। अभी मौसम का अहवाल आपको बताएंगे। बर्फीला मौसम, सर्द हवाएं, कड़ाके की सर्दी। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी, हर तरफ सफेदी छा गई। मरी, नारान, कागान, सवात, कालाम, लोयरदीर, स्कर्दो में बर्फबारी। ठंड में इजाफा हो गया। स्कर्दो में पारा -5 और इस्तोर में -4 डिग्री तक गिर गया। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी का आगाज, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। सयाहों के लिए तफरी, रिहायशियों के लिए परेशानी। मलका कोसार मरी में रुई के गालों ने समा बांध दिया, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। सियाहती मकामात नारान, कागान, शुगरान में वक्फे से बर्फबारी। नारान में 1.5 फीट, कागान में 2 इंच से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी, हर तरफ सफेदी छा गई। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी भारी मशीनरी की मदद से शाहराहों से बर्फ हटाने में मसरूफ। चलास, बाबूसर टॉप, फेरी मेडोज में भी बर्फबारी। सवात, कालाम, लोरदीर, छतर प्लेन में भी दर्जा हरारत नुक्ता अंजुमात से गिर गया। बर्फबारी ने हर चीज को अपनी गोद में ले लिया। गजर के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी, 4 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। बढ़ेंगे कुछ दीगर खबरों की जानिब। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो कहते हैं कि बरतानिया ने पाकिस्तान को हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त से हटा दिया है। FATF के एक्शन प्लान पर जल्द अमल के नतीजे में बरतानिया ने इक़दाम किया। वज़ीर ख़ारिजा ने बरतानी हुकूमत के फैसले को खुशाइंद करार दिया। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने किसान पैकेज की मंजूरी दे दी। किसानों को दिए जाने वाले ज़रई कर्जों का हुजम 1419 अरब से बढ़ाकर 1802 अरब रुपए कर दिया गया है। DAP खाद की कीमत में भी कमी की मंजूरी दे दी गई है। नौजवानों के लिए यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम की मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर ख़जाना इसाक डार की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में वज़ारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के किसान पैकेज की समरी मंजूर की गई। DAP खाद की फ़ी बोरी कीमत 13,750 से कम करके 11,250 रुपए कर दी गई। किसान पैकेज के तहत 3 लाख ट्यूबवेल्स को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किया जाएगा। हुकूमत ने PTI हुकूमत के कामयाब जवान एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम का नाम भी बदल दिया। ECC ने कामयाब जवान एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम का नाम वज़ीर आज़म यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन रख दिया, जिसके तहत नौजवानों को कारोबार के लिए कर्जे दिए जाएंगे। तोशाखाना रेफरेंस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के खिलाफ फौजदारी मुकदमे के लिए रेफरेंस ट्रायल कोर्ट में भेज दिया है। इस बारे में भी रिपोर्ट करेंगे इस्लामाबाद से साकिब सईद। तोशाखाना रेफरेंस का मामला, इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के खिलाफ फौजदारी मुकदमा के लिए रेफरेंस ट्रायल कोर्ट को भेज दिया। तोशाखाना रेफरेंस इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 137, 170, 167 के तहत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को भिजवाया गया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ट्रायल कोर्ट इमरान खान पर करप्ट प्रैक्टिस का ट्रायल करे। गुज़श्ता माह इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना रेफरेंस का फैसला सुनाते हुए PTI चेयरमैन और साबिक वजीर आजम इमरान खान को नाअहल करार दिया था, जबकि उनकी कौमी असम्बली की नशिस्त खाली करार देते हुए फौजदारी कार्रवाई शुरू करने का भी हुक्म दिया था। स्टेटमेंट जमा करवाने पर आर्टिकल 63(1)P के तहत उन्हें नाअहल करार दिया जा रहा है। उनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई शुरू की जाए। प्रोडक्शन टीम के साथ साकिब सईद, न्यू न्यूज़ इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम के खिलाफ दरखास्त पर PTI के वकील ख्वाजा हारिस को 17 नवंबर तक दलाल मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए हैं कि सब इस बात पर आमादा हैं कि एहतसाब का कानून होना चाहिए। जस्टिस एजाजुल अहसन का कहना था कि करप्शन को इतना दर्दनाक जुर्म बनाना चाहिए कि कोई भी इसकी हिम्मत ना करे। इस्लामाबाद से जहांज़ेब अब्बासी की रिपोर्ट। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल देते हुए कहा, मौजूदा नैब तरामीम से करप्ट मुलजिम बरी होकर मजे से घरों में बैठे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कानून का एक बेंच मार्क है जिससे नीचे लाकानूनियत होती है। इस बात पर हम सब आमादा हैं कि एहतसाब का कानून होना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि नैब तरामीम बराह रास्त बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी कैसे हो सकती है। कानून पार्लियामेंट ने ही बनाना है। नैब तरामीम से बराह रास्त बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी कैसे हो रही है? क्या अदालत पार्लियामेंट को आलमी कन्वेंशन पर कानून साजी का हुक्म देना शुरू कर दे? इस तरह तो आलमी कन्वेंशन ही आईने पाकिस्तान कहलाने लगेंगे। कानूनी मेयार अदालत नहीं, आइन तय करता है। अदालत एग्जेक्टिव के बनाए कवानीन में तब मुदाखलत कर सकती है जब वो आइन से मुतसादिम हो।
अदालत ने इमरान खान के वकील को 17 नवंबर तक दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। प्रोडक्शन टीम के साथ जहांजेब अब्बासी, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद। दासू डैम दहशतगर्दी केस 2 मुल्जिमान को 13 मरतबा सजाए मौत की सजा सुना दी गई। फैसला इंसदाद दहशतगर्दी एबटाबाद की अदालत ने सुनाया। सजा पाने वालों में मोहम्मद हुसैन उर्फ जमान मामा और मोहम्मद अयाज उर्फ जांबाज शामिल हैं। मुजरिमान को 302 दफ़ा में 13 साल उम्र कैद के साथ 15-15 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा। दोनों मुजरिमान को सजाए मौत से पहले 14-14 साल कैद बामुशक्कत भी भुगतना होगी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने दीगर 4 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दे दिया है और एक प्रीमियर इंटेलिजेंस इदारे की CTD और एक खसूसी टीम ने एक बिल्कुल ब्लाइंड केस को न सिर्फ हल किया बल्कि इसको मुंतकी अंजाम तक भी पहुंचाया। और अभी कोरोना की सूरत हाल, पाकिस्तान में कोरोना केसेस थमने लगे हैं। 24 घंटों के दौरान 32 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। पाकिस्तान में कोरोना से आज कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 4191 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 0.76% रही, जबकि कोरोना से मुतासिर 48 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कौमी इदारे सेहत की जानिब से जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कराची में 13 केसेस रिपोर्ट हुए, इस्लामाबाद में 6, पेशावर में 3, लाहौर 4 और रावलपिंडी में 1 केस रिपोर्ट हुआ। बुलेटिन में अभी यहाँ एक ब्रेक लेंगे। इस बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।